in. I come in, sir. Come in. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, ma'am. How are you? Sir, I am fine. I just see. Thank you, sir. Okay, please. Rahul Sharma. हाँ जी, sir. Please introduce Rahul. Rahul. Sir, my name is Rahul Sharma. I born and brought up from Delhi, from where I have done my schooling. I have completed my diploma in elementary education from SCRT Delhi. Currently, I am pursuing BSc from VMU Rajasthan, Kota, and my hobby is to just watch and play cricket. My inspiration in teaching as a profession is my big brother, who always motivates and guides me. Thank you. कोई achievements, कोई hobbies? Sir, hobbies, I like to watch and play cricket. Cricket. Okay. Yes, sir. Cricket. ठीक है. Your achievements? Sir, at the point of time, I am small in age, so I didn't achieve anything about academic qualification, except academic qualification. Okay. You are presently pursuing BSc. Yes, ma'am. From? Sir, ma'am, Vardhman Mahavira Open University, Rajasthan. Acha, so it is a distance learning course. Yes, ma'am. So do you go and take weekend classes there? No, ma'am. No. Yes. So what is the reason for opting for this distance learning education? Since you have born and brought up in Delhi only, Yes, ma'am. so you could have done graduation from here itself. Ma'am, during the time of COVID, my family member all was COVID positive, except me. So at that time, my brother is also in KV Rajasthan, Devli. So he called me to here, and when I shifted, so he tell me to pursue my BSc from here. He also pursuing MA from here. Okay. So that's the reason. That is the reason. Yes, ma'am. Why you have preferred this career? Why? Sir, I think teaching, as already said, that it is a noble profession, but I think I will organize and conduct my life in such a way that my life itself message for a student. And when I see the child face, the honesty on the child face, which motivates me to relieve my relieve my children, and I think when I want to touch the life of student, personally I feel this. Okay. Do you have any experience of teaching? No, sir, at that time I don't have any experience except the SEP program I have conducted in my diploma. SEP program. Yes, school experience program. Okay. Okay. कैसा था वो program? क्या experience मिला? What was experience? सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पर सर. मैं 35 डेज़ मैंने वहाँ पे स्पेंड किए स्कूल में, एक गवर्नमेंट स्कूल में MCD के. तो वहाँ जो मैंने जो थ्योरेटिकल नॉलेज जितनी भी ली है, मैंने उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए कोशिश करी वहाँ पे रियल वर्ल्ड में. क्योंकि जैसे हम चीज़ पढ़ते हैं कि हमें इंक्लूसिव एजुकेशन को आगे लेकर चलना है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखनी है हमें, तो वो चीज़ हम थ्योरेटिकल अप्लाई किस तरीके से करना है रियल वर्ल्ड सिचुएशन में, तो वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से क्या कहना चाहते हैं? सर, व्हेन वी टीच अ सब्जेक्ट, सर हम कभी इस तरीके से नहीं पढ़ाने चाहिए कि खाली हम सोलली एक ही सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं. हम इंटीग्रेट करके अगर दो सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे तो ज़्यादा एफिशिएंट रखता है स्टूडेंट को कैटर करने के लिए, उनको समझने के लिए. Which two subjects integrates easily? सर, वी कैन इंटीग्रेट एनी ऑफ द टू सब्जेक्ट. इफ जस्ट फॉर एग्जांपल सर, Yes, please. सर अगर जस्ट मुझे इंडियन फ्लैग के बारे में पढ़ाना है, इंडियन फ्लैग के लिए मेरे पास पोएम आई है इंग्लिश में या फिर हिंदी में कविता आ सकती है, तो सर मैं उसके लिए बता सकता हूँ कि जो इंडियन फ्लैग का जो पोर्शन होता है ऊपर का, जो उसमें रेक्टेंगल पोर्शन होता है, तो वहाँ से मैं बच्चे के लिए पेरीमीटर या एरिया को बता सकता हूँ. Yes. वहाँ से मैं बच्चों के लिए आर्ट से इंटीग्रेट कर सकता हूँ कि मैं बच्चों को कहूँ बच्चे आप वो इंडियन फ्लैग को डिज़ाइन करें, बनाएं, आप पेपर पे बनाएं या फिर आप उसका कटआउट निकालें, जिस तरीके से आप बनाना चाहें, तो आर्ट से इंटीग्रेट कर सकता हूँ. और कोई भी अगर मैं वर्क से करना चाहूँ, वर्क एजुकेशन से अगर मैं करना चाहूँ, तो मैं कोई भी किसी भी तरीके का ड्रामा करवा सकता हूँ, बच्चों से सिंग सॉन्ग करवा सकता हूँ. कोई उस तरीके से बच्चे को मौका दे सकता हूँ कि बच्चे अपने आगे आएँ और अपना प्रदर्शन करें सॉन्ग के बारे में. Okay. Do you have any interest in co-curricular activities? Yes, sir, I have. Yes. Because What you sir, have done in your schooling? sir, personally I feel I am a good cricketer, so I said that Except that cricket, what have you done in co-curricular activities? yes, sir. Sir, I participated in a debate competition and a speech competition. Okay. When annual function is held
or any other specific function is held, I participated in debate competition and essay Not only the thing is the debate and debate competition. The speech second one is speech competition, speech competition. The third one. essay writing competition. Okay. Yes, sir. What is the difference between FLN and MLL? So FLN basically is foundational learning, FLN, foundation literacy and numeracy, and MLL is minimum level of learning. MLL is introduced earlier than FLN. It is for basically the जो भी हम बच्चे को बताना चाह रहे हैं कि एटलीस्ट वो इतना मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग अचीव कर सके रादर देन आगे जाने से पहले. और FLN का क्या है, FLN अभी NEP भी 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ, जिसको 2026 से अचीव करने की बात कही गई. उसमें भी यही लिखा, लेकिन उसमें लक्ष्य बताए गए हैं, टारगेट्स बताए गए कि हमें बेसिकली अगर कोई बच्चा 3rd क्लास में जाता है तो क्या उसके पास कंपिटेंसी होनी चाहिए लिटरेसी न्यूमरेसी से. टाइम टू टाइम पे एजुकेशन पॉलिसीज लाने की क्या नीड है? सब ठीक तो चल रहा है? सर टाइम टू टाइम एजुकेशन पॉलिसी लाने की नीड इसलिए है क्योंकि अब अगर हम देखें, हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, तो एक मॉडर्न ट्रांजिशन हुआ है डिजिटलाइजेशन का. जिस तरीके से हमारी पहले शिक्षा चलती थी, उसमें अगर देखा, जैसे लास्ट हमारी पॉलिसी थी 1986 की पॉलिसी, उसके बाद हमारा NCF 2005 आया, और अब करंटली NEP 2020 आई है. तो उसमें देखा जाए तो जब 2005 में NCF लास्ट अगर रिवाइज उसको देखें या फिर NEP 1986 को देखें, उस समय डिजिटलाइजेशन इतना नहीं था, लेकिन आज सब चीज़ ज़्यादातर डिजिटलाइजेशन हो रही है. तो सिर्फ डिजिटलाइजेशन एक रीज़न है कि इतना बड़ा एक्सरसाइज की जाए हमने पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया स्कूलिंग का? सर और भी ये है कि सबसे पहले टीचर का एक एटीट्यूड भी बनाने की नीड है, क्योंकि सर आज हम जानते हैं, आज हम बहुत ज़्यादा दूर रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर, कि हम चाहते हैं कि बच्चा इंक्लूसिव एजुकेशन. टीचर का भी एटीट्यूड इसके लिए पॉजिटिव नहीं है? यस सर. सर टीचर का एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है, मतलब उसको और ज़्यादा एंगेज करने के लिए जैसे NEP में इस्तेमाल किया गया है. जैसे हम पहले क्या था, जो बच्चे डिसेबल्ड हैं उसके लिए हम विकलांग शब्द कर लेते हैं, अब दिव्यांगजन NEP 2020 ने इस्तेमाल किया है. आपको लगता है कि टीचर्स का जो लास्ट के कुछ डेकेड्स में टीचर की रेपुटेशन कुछ घटी है सोसाइटी में? सर समाव हम कंप्लीटली नहीं कह सकते घटी है, लेकिन एक टीचर एक आदर्श होता है एक सोसाइटी के लिए. सर टीचर की एक ड्यूटी होती है कि वो अपने केवल स्टूडेंट को शेप नहीं करता, वो अपनी पूरी सोसाइटी को शेप करता है, मतलब मैनिपुलेट करता है. एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक टीचर का सर शेप, मतलब मैनिपुलेशन वर्ड थोड़ा सा, यस सर, थोड़ा नेगेटिव वर्ड जाएगा. यस सर. सर मीन्स कि मतलब जो भी नॉलेज रखता है वो, या फिर जो भी रखता है वो अपने सोसाइटी में इम्बाइब कर सके जो वो चाहता है. एक सोसाइटी सर टीचर ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन NEP थोड़ा सा इसी बात पर जोर देता है कि टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अच्छे कर देते. सर 2 ईयर में हम किसी को एकदम कम्प्लीटली टीचर मतलब घोषित नहीं कर सकते. सर जैसे मैंने कहा भी अर्लियर कि जो चीज़ मैंने थ्योरेटिकल पढ़ी है, जैसे मैंने डिप्लोमा में करी है, अगर मैं जब उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्बाइब करूँगा या प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करूँगा, वो ज़्यादा मैटर करेगा. जैसे अगर पर्सनली फील करता हूँ, जैसे सर ने पूछा आपके पास एक्सपीरियंस है, अभी मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती चली जाएंगी तो मेरे पास एक्सपीरियंस होता चला जाएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा. क्यों अपने दिल्ली में पढ़ाओ, आराम से सिलेक्शन लो, KVS क्यों चुना आपने? सर KVS इसलिए क्योंकि एज अ सब हम जानते हैं कि सर KVS एक डाइवर्सिफाई कल्चर रखता है, एक मिनी इंडिया की तरह हम कह सकते हैं KVS को. और सर दूसरी बात ये है कि कोई भी एक जॉब के अंदर इंसान मोनोटोमस हो जाता है, लेकिन KV एक ऐसा है जहाँ पर्सन एलिनेटेड रहता है. एलिनेटेड मीन्स कि हर दिन आपके लिए KVS में एक चैलेंजिंग डे होता है. आपके पास अलग अलग डिफरेंट वैराइटीज़ के बच्चे आते हैं, डिफरेंट प्लेसेस से बच्चे आते हैं, उनका सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, उनकी लैंग्वेजेस अलग होती हैं, उनकी रेस अलग होती है, उनकी कास्ट अलग होती है, और आपको हर दिन एक प्लान करके जाना पड़ता है एज आप KVS में टीचर है, क्योंकि हर तरीके का बच्चा आपको वहाँ मिल सकता है. और आपको सबसे बड़ी बात, अगर आप मैं जैसे साउथ का एग्जांपल लो, बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप जाएंगे KVS से. अभी तो बहुत कम एज है आपकी. हाँ जी. थोड़ी एज चाहिए होगी, आगे और क्वालिफिकेशन बनेगी तो अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो सब जाना चाहते हैं, तो जाएंगे नहीं सर. ऐसा क्या रीज़न मतलब इसका? मैम बिकॉज आई लव टू एक्सप्लोर कल्चर, मतलब मैं कल्चर को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, जिससे कि अभी मैं केवल दिल्ली में ही पढ़ा बड़ा हूँ, तो मैं हार्डली 2-3 स्टेट ही ज़्यादा चाहता हूँ, लेकिन और ज़्यादा मतलब जान नहीं पाया हूँ और स्टेटों को. केवल मैं अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोलूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, केवल मैंने अभी इंडिया को अपना केवल मैप पर ही देखा है. आपकी पोस्टिंग ना कर्नाटका में हो गई है, और कर्नाटका के रूरल एरियाज में जहाँ कन्नड़ा बहुत डोमिनेंट लैंग्वेज है, वहाँ पे आपको पढ़ाना है, और वहाँ आप हिंदी लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं. तो हिंदी लैंग्वेज में व्याकरण का एक टॉपिक है सर्वनाम, वो आज आपको बच्चों को पढ़ाना है. पढ़ाइए सिचुएशन. ओके सर, थैंक यू.
तो कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चे, आज हम स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपसे दिनांक पूछता हूँ कि आज दिनांक क्या है? सब बच्चे बताएंगे दिनांक क्या है आज? हाँ बच्चे बताइए, आज दिनांक क्या है? 2 अप्रैल। अप्रैल का महीना कौन सा होता है? चौथा। 2 अप्रैल 2023। बहुत ही बढ़िया। तो रोहन, आज आपके 2 फ्रेंड्स नहीं आए? आज आपके 2 फ्रेंड्स क्यों नहीं आए? अच्छा, उनकी तबीयत खराब है। अच्छा, आपकी तबीयत खराब है। तो क्या हो गया बच्चे ने? फीवर। अच्छा, फीवर हो गया उनको। ओके बच्चे, उनकी मुझे रिपोर्ट देते रहे आप कि उनकी तबीयत कैसी चल रही है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी। कौन सा विषय पढ़ेंगे आज हम? हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आपको कहानी सुनना पसंद है ना? पसंद है ना? बहुत ही बढ़िया। मुझे आवाज़ कम आ रही है। पसंद नहीं है क्या आपको कहानी सुनना? अच्छा, चलिए मैं आपको कहानी सुनाता हूँ एक। तो एक छोटू था। कौन था? एक छोटू। छोटू एक बर्थडे पार्टी में गया। कहाँ पे गया? एक जन्मदिन था उसके दोस्त का, सोनू का, वो उसकी बर्थडे पार्टी में गया। छोटू जब वहाँ बर्थडे पार्टी में गया तो उसने वहाँ बलून देखे। किसने? छोटू ने वहाँ पर बलून देखे। किसने बलून देखे? छोटू ने वहाँ बलून देखे। तो उसे बलून जब पसंद आए तो वो घर ले आया। छोटू को बलून पसंद आए और छोटू बलून को अपने घर ले आया। कहाँ पे ले आया? घर ले आया। जब छोटू अपने बलून अपने घर ले आया तो उसकी मम्मी ने पूछा कि बेटा आप बलून कहाँ से लाए? तो उन्होंने बोला मम्मी आज मेरे दोस्त सोनू का जन्मदिन था, मैं वहाँ से बलून ले आया। तो छोटू ने क्या जवाब दिया कि मम्मी आज मेरे सोनू का बर्थडे था, मैं वहाँ से ले आया। तो मम्मी ने उससे पूछा कितने बलून लाए बेटा आप? तो उन्होंने जवाब दिया मम्मी मैं 4 बलून लाया। तो आपको ये स्टोरी आपने सुनी तो आप ये देख रहे हैं कि मैं बार बार छोटू कर रहा हूँ, यानी कि मैं एक चीज़ को, छोटू जो नाम है उसका, मैं बार बार उसी पर नाम ले रहा हूँ। तो आप कोई बता सकता है कि मैं छोटू के अगर कोई उसके लिंक के लिए या फिर कोई मैं कुछ यूज़ करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, या फिर उसे हिंदी में क्या कहते हैं? सोचो क्या कहते हैं? नहीं आया? चलो आज हम उसी के बारे में पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? देखिए, मैंने कहा, जैसे मैंने आपको अभी कहानी सुनाई तो उसमें मैंने इस्तेमाल किया छोटू अपने बर्थडे पार्टी में गया, छोटू वहाँ से बलून लाया, छोटू ने अपनी मम्मी को बताया, वो बलून लाया, फिर मम्मी ने उससे पूछा कितने बलून। तो मैंने बार बार छोटू को यूज़ किया, मतलब बार बार छोटू का इस्तेमाल किया। तो सर्वनाम कैसे शब्द होते हैं? सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जहाँ हमें संज्ञा को बार बार बताने से, मतलब बार बार हमें बताने की जगह उसकी जगह हम कोई सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा कि छोटू बाजार गया, या फिर जैसे मैंने कहा छोटू बर्थडे पार्टी में गया, छोटू वहाँ से बलून लाया। तो ये छोटू को रिपीटेशन रोकने के लिए, यानी कि हम बार बार उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम कौन सा टॉपिक इस्तेमाल करते हैं या क्या इस्तेमाल करते हैं? सर्वनाम। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ अब छोटू वहाँ बाजार गया, छोटू वहाँ, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखते हैं, रोहन आप बताओ कौन सा सेंटेंस? अच्छा आप बताओ। तो हम रोहन का ही सेंटेंस लिखते हैं कि रोहन बाजार गया। अच्छा रोहन, आप बाजार तो चलेगा, आप बाजार से लाए क्या? जैसे रोहन ने बोला रोहन बाजार से सब्जी लेकर आया, तो रोहन बाजार से सब्जी लेकर आया। तो आप यहां देख रहे हैं कि रोहन बाजार गया, रोहन बाजार से सब्जी लेकर आया। तो बार बार रोहन को यूज करने से, इस्तेमाल करने से, इसकी जगह मैं क्या कुछ और यूज कर सकता हूं? वही जो चीज होती है, यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो मैं शब्द प्रयोग किए जाते हैं वही क्या कहलाते हैं? मैंने सर्वनाम कहता है। जैसे मैं इसकी जगह क्या, रोहन की जगह क्या इस्तेमाल कर सकता हूं मैं? तो इसकी जगह मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूं? वह। अब ये वह क्या है सर? हमें तो पता नहीं है वह क्या है।